all carbon sp2 hybridized चाहिए. Second, here see cyclic resonance चाहिए. And third and finally 4n plus 2 pi electrons चाहिए. Guys, ये सब कंडीशन है तो ही कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे. Here एंटी एरोमेटिक ये कंडीशन followed but the foreign electrons found. And finally we have guys non-aromatic. So non-aromatic में फर्स्ट टू में से ही नॉट फॉलोइंग एनी. मैं क्लियर ना? फर्स्ट तीन फॉलो हो रहे तो एरोमेटिक. लास्ट वाला जो है उसमें फॉरेन इलेक्ट्रॉन्स खाली फॉलो हो रहा है. फॉरेन खाली फॉलो हो रहा है तो इट्स एंटी एरोमेटिक. एंड फर्स्ट दो में से ही कुछ भी नहीं फॉलो हो रहा है तो तुरंत ही बोल देने का इट्स नॉन एरोमेटिक. ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा कंपाउंड है. we'll have maximum example here. ये can you see here this 3 carbon, this is having only 1 hydrogen, so only 3 elements connected sp2 hybridized. Similarly beta here also. And finally see here also only 3 are connected, 2 carbon and 1 hydrogen. It is also sp2 hybridized. ठीक है, अभी साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं दैट वी हैव टू चेक. सो हैव यू रिमेंबर्ड कल हम लोग ने लेक्चर में पढ़ा था द 5 कंडीशन फॉर रेजोनेंस. कैन यू रिपीट गाइस? आल्सो 5 कंडीशन फॉर द रेजोनेंस. फॉर द रेजोनेंस वी रिक्वायर डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड के बाजू में Carbo anion radical, double bond and lone pair, sir. Yeah, great, superb. So great. Here double bond, can you see double bond के बाजू में कार्बोकैटायन. It will start resonance beta. So it will start resonance and we'll get 2 more resonating structures. Beta. So we'll get more structures here. So इसको बोलते हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज सब बाजू गया. कैन यू सी हर एक कार्बन पे गया पॉजिटिव चार्ज, देखा आपने? सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक रेजोनेंस. हर एक बाजू जाना चाहिए. So to check that, a very simple thing is that, see here in the first example only, all are double bond के बाजू में कार्बोकैटायन from this side and here also right hand side also double bond के बाजू में कार्बोकैटायन.
So triple bond के बाद में they all are connected with each other, means cyclic resonance is possible. So resonance is possible. So now let me check the number of pi electrons. How many pi electrons, guys? See, only this 2 pi electrons. Only 2 pi electrons. So guys, everyone, 2 pi electrons. So 4n plus 2 pi electrons mein I can put n की value 0. So I'll be getting here what? So then I'll be getting 2 pi electrons. So yes, it's satisfying all three. ठीक है? तो hence इसको क्या बोलना चाहिए? Cyclopropenyl. प्रोपेनिनाइल कैटायन को should be called as beta what? बोलो ना. Should be called as aromatic, right? मैं clear all? राधिका Yes. बैठ रहा है दिमाग में? Okay, great. Yes, sir. Great. चलो. Now check it out this. Cyclopropenyl anion. So here, see, इधर एक ही हाइड्रोजन है, so that's why 3 जर्नी कनेक्टेड है इधर, and this is sp2 hybridized. Why I'm not counting lone pair in hybridization? See, that's the thing here. ये lone pair hybridization में नहीं आएगा because ये lone pair is involved in resonance. So in hybridization, in what? Hybridization, only those lone pair counted, which is beta, which is fixed. Fixed मतलब जो मूव नहीं होगी इधर उधर, तो ही हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को लेना है. ठीक है? नाउ डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बो एनायन, देखा? इट इज क्लियरली समझ रहा है कि साइक्लिक रेजोनेंस करेगा. एंड साइक्लिक रेजोनेंस कर रहा है, सब हो रहा है, तो फाइनली विल बी चेकिंग आउट द pi electrons. ठीक है? तो फाइनली चेकिंग आउट दी व्हाट? pi electrons कितने हैं भाई? एनीवन? ये 2 प्लस ये जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है उसको भी देखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि वो भी देखो ना घूम रहा है ना, साइक्लिक रेजोनेंस में पार्ट ले रहा है. सो देयर आर गाइस व्हाट? Am I clear guys? Everyone? Yes. इसके लिए Yes, इसको sir. ग्रेट एंटी एरोमेटिक बोलना पड़ेगा बेटा, नॉट एरोमेटिक. 4n pi, देखो ये दोनों फर्स्ट दोनों रूल फॉलो किया. sp2 हाइब्रिडाइज्ड सब कार्बन, इवन साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, फॉलो कर रहा है, बट लास्ट में 4n इलेक्ट्रॉन 4n pi वाला फॉलो कर रहा है. तो हेंस cyclopropynyl anion is a anti-aromatic.
Now let me check here. Here, cyclopent, penta, dienyl, anion. Cyclopenta, dienyl anion बेटा. Guys, ध्यान से. As you know, this double bond के carbon is sp2 hybridized. Everyone knows that now. And this carbon, ये lone pair एक हाइड्रोजन है, but lone pair को will won't take because it's involved in resonance, so won't take in hybridization. Double bond के बाजू में कार्बो anion, so it will be there in resonance. वो एक जगह पे फिक्स नहीं है. All are sp2. चलो ग्रेट. साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है. देखो कार्बन के बाजू में डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड के ये डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बो एनायन. एवरीवन इज इन्वॉल्वड विद ईच अदर, हेंस साइक्लिक रेजोनेंस इज आल्सो पॉसिबल. राधिका समझ रहा है? Yes, sir. And finally, beta, very good. Here there are how many pi electrons? Can you please tell me? 4. नहीं. सी, ये दो कितने हुए? बट अभी ऊपर बात हुई ना कि जो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है उसको पाई इलेक्ट्रॉन करके गिनना है. लोन पेयर right here involved in resonance, then counted as, counted as pi electron, right? So there are 6 pi electrons. Am I clear? So in 4n plus 2 pi electron wala rule mein, if I put here n की value 1, so 4 into 1 4 plus 2. Am I clear? इधर तक बैठ रहा है पहले? Yes, sir. हाँ. So guys, here it's a aromatic. चलो अभी एवरीवन, कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. दिस डबल बॉन्ड वाले सब sp2 होते हैं. साइक्लिक रेजोनेंस है. डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटायन भी है. एवरीवन इज इन्वॉल्व विद ईच अदर, हेंस है हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? बोलो भाई. Hence this is cyclopenta dienyl cation will be, am I clear with that? समझ रहा है कुछ? Yes, sir. सर इसमें भी उसकी ज्योमेट्री में वो लोन पे लेंगे. इसकी ज्योमेट्री में लोन पेयर कहाँ है भाई? है ही नहीं ना. मतलब लोन पे नहीं, मतलब जब इसकी ज्योमेट्री प्लेनर होगी ना. हाँ, सब sp2 है ना, तो प्लेनर. Sir, can you go to the previous slide? अरे Can you go to the slide? नॉट ऑडिबल बेटा. Sir, can you go to the previous slide? Yeah, sure. I've gone.
Okay. Doubt, then tell me. I'll explain again. Yeah, sir, I'm done. Okay. Chalo. Here, सदन बेटा समझ रहा है ना भाई? ये क्या कहलाएगा गाइस? ये कितने हाइड्रोजन आ गए? 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, राइट? ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? हेंस पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ. इट शुड बी. Am I clear, guys? हाँ कि ना? इधर तक क्लियर है? Yes, sir. अभी तुबा जी, ये क्या है? साइक्लो हेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन. क्या है ये? एवरी कार्बन sp2 hybridized. Even everyone is involved in. बोलिए. देखो ना, डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटायन. तो क्या लिखो? एवरीवन इज इन्वॉल्व इन. बराबर. और आप देखिए हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स. हेंस फॉलोइंग हेंस इट्स अ. मैं क्लियर बेटा? एवरीवन. Sir, can you once again show the previous slide? श्योर. सी बेटा, दिस वन. Yes, sir. No, I understood. ओके बेटा. अभी see, in this there is no doubt about this carbon. All carbons is. Now want to check here hybridization of oxygen. So though there are 2 lone pair and 2 bonds, 2 lone pair and 2 bonds के हिसाब से क्या होए? sp3. But one lone pair is fixed, one is delocalized. Delocalized means movable. Here it's involved in resonance. Double bond के बाजू में lone pair, double bond के बाजू में lone pair. So involved in resonance. Am I right? So here, one lone pair and 2 bond pair, sp2 hybridized oxygen also. Yes, am I clear? ये fixed lone pair
is not in pi electrons. ठीक है, but the movable वाला lone pair will be a pi electrons with this two. Total 6 pi electrons के हिसाब से it's also considered as aromatic. सदन समझा कुछ बेटा? सर ये कैसे मालूम पड़ता है कि वो एक डीलोकलाइज है एक लोकलाइज है? अच्छा, तो आप खुद देखिए, इधर डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पैर रेजोनेंस चालू कर देगा एक तो, हाँ, जी सर। डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पैर आएगा तो उसको रेजोनेंस करना ही पड़ेगा। अभी रेजोनेंस करने के लिए एक ही चाहिए हमें, दो दो की जरूरत, 10-10 होंगे तो 10-10 की जरूरत नहीं है। रेजोनेंस करने के लिए खाली कितनी लोन पैर चाहिए? एक एक ही चाहिए लोन पैर। हाँ, बाकी के सारे सब फिक्स्ड होंगे। 10 है अगर लोन पैर, एक ही मूवेबल होगा, बाकी के 9 फिक्स्ड हो जाएंगे, राइट? मैं क्लियर? यस सर। सर ये वापस समझाना। हाँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजन पे है ना बेटा, देखिए ऑक्सीजन पे 2 लोन पैर होती है बेटा। यस सर। तो एक जो है डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पैर, कैन यू सी? एक लोन पैर क्या है बेटा? डीलोकलाइज्ड है, मतलब वो रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। यस और सर। दूसरा लोन पैर जो है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड मतलब फिक्स। इतना पहले बैठा दिमाग में? यस सर। अभी टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, कभी भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में फिक्स्ड वाला लोन पैर ही गिनते हैं। हाउ मच? 2 बॉन्ड पैर और एक लोन पैर के लिए 3 ऑर्बिटल्स ओनली यूटिलाइज्ड, दैट इज डन। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है। सर सर हाँ बोलिए। सर ये आपने लिखे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू sp2, वो क्या है सर? देखिए, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक तरीका है, दैट इज 2 का टेंशन मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड, 3 का टेंशन, व्हाट इज टेंशन? टेंशन इज नथिंग बट बॉन्ड पैर प्लस लोन पैर, ठीक है। बॉन्ड प्लस लोन पैर का आंसर 2 आता है, तो sp हाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड प्लस लोन पैर का आंसर 3 आता है, तो समझ रहे हैं? हाँ बेटा। यस सर। सर ये लिख लूं? ये लिख के ही हाँ। भेज रहा हूँ ना मैं आपको, ये प्रेजेंटेशन तो भेजता ही हूँ ना मैं आप लोग को, आराम से लिख लेना ना, टेंशन की क्या बात है, ठीक है। सर sp3d3 ज्यादा नहीं आता है ना? साधा नहीं ये आता जो- मतलब? मतलब मोस्टली sp3d2 और ऊपर के ही, मतलब मुझे मालूम है। देखो ये IF7 करेंगे ना अपन, हाँ। तो ये आएगा sp3d3, ओके। करेंगे अपन, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है ना उधर। चलो अभी मेरे को आगे बढ़ने दो। तो इधर क्या आया सदन? देखिए, ये दो बॉन्ड पेयर दिख रही है आपको, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। हाँ बोलो भाई। और ये फिक्स्ड
बेटा किसका माइक ऑन है? ओके, चलो। तो हियर क्या दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर समझा सदन? जी सर। तो 3 का टेंशन मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट? यस सर। एक लोन पेयर क्यों नहीं पकड़े, एक्स्ट्रा है उधर? क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, डीलोकलाइज्ड है, वो तो घूमते रहता है, इसका टेंशन नहीं है कुछ। टेंशन खाली किसका रहता है? लोकलाइज्ड लोन पेयर का, जो रहता है जिंदगी भर तक रहता है, मूव नहीं होता है। ओके, अभी देखो डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर, डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, राइट? हाँ। यस सर। और फाइनली बेटा आप देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स में हाइब्रिडाइजेशन में लोकलाइज लोन पेयर गिनना है, और दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन्स में डीलोकलाइज लोन पेयर गिनना है। पाई इलेक्ट्रॉन में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन प्लस क्लियर है बेटा? तो देयर आर हाउ मच लोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर एक है, प्लस दो बॉन्ड पाई बॉन्ड वाले, मतलब 4 हो गए वो, और ये 2, 6 हो गए। कितना समझा बेटा आरजू? Am I clear up till now? Yes, sir. Okay, great. So it's a aromatic. चलो, अभी ये दोनों में से which is more basic, which is less basic? Guys, as you know that तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? जितना ज्यादा लोन पे डोनेट करेंगे आप, उतना आप ज्यादा बेसिक कहलाएंगे। ठीक है, भी आप खुद देखिए इधर, ये लोन पैर है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, हाँ कि ना? डबल बॉन्ड यस के सर। बाजू में लोन पैर, और इसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करेंगे तब जाके क्या होगा? तब जाके ये क्या बनेगा? बराबर है। तो ये कंपाउंड को एरोमेटिक बनने के लिए लोन पैर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। रिक्वायर्ड इन बेटा व्हाट? किस में जरूरत है इसकी? हाँ, साइक्लिक रेजोनेंस में जरूरत है, राइट बेटा? यस हाँ कि सर। ना? ओके, यस सर।
अभी ये डोनेट नहीं कर सकता है किसी को भी, ये डोनेट करेगा तो इसका क्या खराब हो जाएगा, एरोमेटिसिटी चले जाएगा इसका, एरोमेटिसिटी चले जाएगा तो ये हाईली स्टेबल नहीं रह पाएगा। जबकि ये लोन पैर बहुत कम रेजोनेंस करेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इज इनफ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन वी हैव ऑलरेडी, बराबर। तो ये किसी को डोनेट भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी एरोमेटिसिटी, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर ऑलरेडी है, राइट। हम लोग को लोन पेयर की जरूरत नहीं है। दिस कैन बी व्हाट, बोलो भाई, डोनेट कर सकते हैं हम लोग, राइट एवरीवन, राधिका। सो ये वाला हाईली बेसिक कहलाएगा इसके मुकाबले। देखा आपने, लेफ्ट वाले को कंपलसरी लोन पैर नहीं दे सकता है, वो देगा तो उसका एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा वो, राइट। लोन पैर दे देगा तो। मैं क्लियर? भाई कितना बैठा दिमाग में? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। नहीं समझा तो ना बोलने का, समझा तो ही हाँ बोलने का भाई। ओके गाइस, बोलो अभी इसमें विच हैज मोर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स? फर्स्ट वाले का। क्यों? सर उसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और वो अपना लोन पेयर दे सकता है। अच्छा, ओके। देखिए, ये नाइट्रोजन जो जुड़ा हुआ है बेटा, वो कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये मानते हो आप? यस सर। और ये लोग जिससे जुड़े हुए हैं डारेस, दो दो हाइड्रोजन है बेटा इधर। बात समझ में आ रही है? ये लोग किससे जुड़े हुए हैं? कल अपन ने बात की थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेस और sp3 की। क्लियर है? तो ये लोग ही खुद मांगते रहते इलेक्ट्रॉन, नेगेटिविटी इसको चाहिए, ये भी बोलेगा नेगेटिविटी मुझको चाहिए, इजीली डोनेट नहीं करने देगा। द रीजन इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट, राइट। सदन समझा बेटा? जी सर। तो ये लीस्ट बेसिक है बाकी सबसे। क्यों लीस्ट बेसिक है, समझा? हाँ, क्योंकि वो नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? हाँ, नाइट्रोजन
sp2 वाले कार्बन। टू हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी ये तीनों में से पहचानो, चलो कौन ज्यादा बेसिक है। क्लियर कट अभी, दिमाग लगाओ। सेकंड वाला सर। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन वो। हाँ सर। नहीं बेटा, सी इसको है ना लोन पैड डोनेट करना है, बट ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। हाँ, हाँ कि ना। यस सर। तो माइनस आई इफेक्ट से इसको लोन पैड डोनेट नहीं करने देगा। सिमिलरली इधर माइनस आई इफेक्ट कौन कर रहा है? दूसरा नाइट्रोजन। इधर कोई भी नहीं है, सब क्या है? सर बात समझ में आ रही है? सर सब प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, इधर डोनेट कर रहे हैं, नेगेटिविटी लेके जाओ। इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। सर हाँ बेटा। सर ऑक्सीजन भी प्लस आई ग्रुप है सर। नहीं, ऑक्सीजन हाँ सर। देखिए, अपन कल का, ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो वो है होता है ना। हाँ देखिए इधर अपन ने बात की थी शायद। देखो बेटा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? माइनस चार्ज। तो वो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। अगर माइनस चार्ज यस नहीं सर। है मतलब तब तक तो उसको चाहिए ना। हाँ सर। जी। समझा अभी? जी सर। अच्छा, इधर ऑक्सीजन, इधर माइनस आई इफेक्ट करेगा। आप कंपेयर करोगे पहले स्ट्रक्चर में भी माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, बट माइनस आई इफेक्ट नजदीक है, ये लोग नजदीक है। माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू इंट्रेंस डिस्टेंस। ठीक है, दूर है ऑक्सीजन। क्लियर? सो कौन से स्ट्रक्चर में माइनस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है? क्लियर है बेटा? यस सर। तो हेंस थर्ड वाला हाईली बेसिक है। फिर फोर्थ वाला जहां पे माइनस आई इफेक्ट नाइट्रोजन कर रहा है। फिर सेकेंड वाला जहां पे माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन कर रहा है। एंड लीस्ट बेसिक इज एकदम बाजू में थे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, वो भी दो दो। सब लोग पीछे पड़े हैं, माइनस आई इफेक्ट जबरदस्त किए वो लोग ने। मैं क्लियर गाइस? ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चन करके जाएंगे ऐसे तो आराम से अभी अपन लोग एग्जाम में कर पाएंगे ना। अभी तक किए नहीं थे तो इसके लिए नहीं आ रहा था, बट अभी देखो कर रहा हूं मैं। इसको रिवाइज करेंगे, एग्जाम भी डिले हो रही है, अपने को कितना एडवांटेज मिलेगा आप खुद सोचिए। राइट? चलो। एग्जाम डिले होने वाली है सर। हाँ, मई में जा रहा है बोर्ड। देखो वापिस जो लास्ट टाइम अगस्त सितंबर था वही आ जाएगा भाई। फुल ऑन प्रैक्टिस करो, जबरदस्त एडवांटेज है अपन को। हम्म। यस सर। Yeah. See, who is more stable and why?
Anyone? Who is more stable and why? बोलिए. नो. ठीक है, चलो. तो हियर कल बात हुई थी अपनी. NO2 is which group, Sadan? माइनस आई ग्रुप. Minus I as well as Q. क्या है ये? वो लेगा नेगेटिव डेंसिटी विथड्रॉ करेगा, विथड्रॉइंग ग्रुप है. विड्रॉइंग ग्रुप है. ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन को फटाक से शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे. नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज. एंड पॉजिटिव चार्ज विल व्हाट? विड्रॉ द नेगेटिव डेंसिटी. बराबर है? हाँ कि Yes. ना? तो यार माइनस आई इफेक्ट ये कहाँ पे पॉजिटिव डेंसिटी बढ़ाता है बेटा? ऑर्थो और पैरा पे, राइट? ऑर्थो और पैरा पे. और ये CH2 पैरा पे ही था. देखो, पैरा, पैरा सामने, बाजू में ऑर्थो, राइट? तो भाई पॉजिटिव चार्ज तो बहुत बढ़ गया माइनस आई इफेक्ट से. डिस्टेबलाइज हो गया स्टेबलाइज के बदले. ये दोनों हम लोग बाद में करते हैं. इस पे आ जाते हैं पहले. ओए, क्या होगा इधर? ये लोन पैर क्या होगा? डोनेट करेगा. ये डोनेटिंग ग्रुप है. डोनेट करके क्या डेवलप करता है? ऑर्थो और पैरा पे. बोलो भाई, ऑर्थो पैरा पे क्या करता है वो? नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, हाँ कि ना? और देखो, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट. प्लस आर इफेक्ट से एकदम मस्त नेगेटिविटी पहुंच गया कार्बोकेटाइन को और वो स्टेबलाइज हो गया, राइट? इतना क्लियर है पहले? सर OCH2 माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा. हाँ, माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा. बट रेजोनेंस इफेक्ट इज सो मच पावरफुल, सो इसके लिए हम लोग इसको ट्रंकेट करते हैं. ट्रंकेट मतलब निग्लेक्ट करते हैं. ओके सर. ओके. एंड OCH3 माइनस आई इफेक्ट और भी नेग्लिजिबल हो गया है बिकॉज वो बहुत ही दूर है. डिस्टेंस बहुत है. ठीक है, समझा? अभी ये है ना, क्लोरीन का समझना भाई. क्लोरीन का गाइस, बिकॉज ऑफ दिस लोन पैर, पहली बात, help me out here. Due to this lone pair, it becomes, it donates and develops on ortho and para position, right? बैठ रहा है दिमाग में? Which is called as plus R effect. ये एक बात समझ में आई, हाँ कि ना? क्लोरीन also does ठीक है, मतलब आजू बाजू के इलेक्ट्रॉन को खींचते रहता है वो, राइट? दो दो बात समझ में आ रहा है? ऑपोजिट काम दोनों का. एक तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा,
बट क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर था, वो डोनेट हुआ। हाँ भाई, बात समझ में आया? इधर तक क्लियर है? पहले दो दो काम। सर फिर ऐसा तो दोनों न्यूट्रल हो जाना चाहिए ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देना चाहिए इन लोग। हाँ हाँ, अभी दो जन फाइट कर रहे हैं, दो जन फाइट कर रहे हैं, तो तीन तीन रिजल्ट पॉसिबल है। क्या? दो में से एक जीता, दूसरा जीता, और फाइट टाई हो गया। तीन रिजल्ट पॉसिबल है ना? तो आप जो बोल रहे हो तीसरा रिजल्ट बोल रहे हो, बराबर, जहां पे दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। हाँ कि ना? यस सर। तो बाकी के दो रिजल्ट के बारे में भी सोचो। हियर हेलोजन के केस में मेजर आउट हुआ है माइनस आर इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट दैन प्लस आर इफेक्ट। तो अभी बोलो कौन जीता? ये तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा। इसके लिए द रिजल्ट क्या आया? कौन डोमिनेंट है हेलोजन के केस में खाली? माइनस आई इफेक्ट। इसके लिए हम लोग को कभी भी हेलोजन आएगा तो हम लोग को माइनस आई इफेक्ट को ही ध्यान में रखने का और सॉल्व करने का, बराबर है। माइनस आई इफेक्ट के कारण जनरली ऑल कार्बन पे, देखो, जनरली ऑल कार्बन पे कौन सा चार्ज देखने मिलता है? बराबर है। हाँ, अभी इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल मतलब सपोज कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल लाइक्स टू अटैच सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, देखो इसका भी क्या है, ओए, क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है इसका। और माइनस आई इफेक्ट के कारण भी सब कार्बन पे क्या चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज नॉट इजीली अटैच्ड, तो हेंस हेलोबेंजीन को हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला समझा? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैच नहीं हो पा रहा है अभी, ऑब्वियसली ये बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज विल बी वेरी लीस्ट, ठीक है। सो ऑर्थो एंड पैरा हैज लीस्ट पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, बिकॉज उधर प्लस आर इफेक्ट से नेगेटिव भी तो जा रहा है, उधर कॉम्बिनेशन हो रहा है, पॉजिटिव भी जा रहा है नेगेटिव भी जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज या तो स्लाइटली पॉजिटिव, ऐसे मान के चल सकते हो आप। सो ऑर्थो पैरा हैज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज with great difficulty electrophile attaches over there. किन राधिका, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन एवरीथिंग फटाक से? हेलो बेंजीन का पूरा अच्छे से समझा दिया मैंने। हेलो बेंजीन में दो काम होते हैं, कौन सा? बोलो फास्ट, आई डोंट हैव टाइम, फटाक से बेटा। हेलो बेंजीन में बोलो, जो आता है वो बोलो, जो समझा है वो बोलेंगे तो होगा ना क्लियर। नहीं आता है तो मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो?
हेलो बेंजीन में क्या बेटा? हाँ आर्जो, यू गो अहेड। दो दो काम हुआ वो समझा? हाँ सदन, यस सर। हेलो बेंजीन में दो काम हुआ, दैट इज प्लस आर इफेक्ट से सर डोनेट हुआ ऑर्थो और पैरा पे, माइनस आई इफेक्ट से विथड्रॉ भी करा। विड्रॉ भी करा। बट क्या फाइंड आउट हुआ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट से? माइनस आई इफेक्ट इज मोर माइनस आई डोमिनेंट इफेक्ट देन। डोमिनेट तो हम लोग क्वेश्चन प्लस सॉल्व आर करने के इफेक्ट। लिए खाली माइनस आई इफेक्ट ही देखेंगे, ठीक है? यस सर। और वो डिस्टेंस के हिसाब से कम होते जाता है, ये भी दिमाग में रहना चाहिए। अभी और आगे अगर बढ़े हम लोग, तो हियर हम लोग ने क्या लिखे फिर? दैट इज वही लिखे कि जनरली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइनस आई इफेक्ट देखेंगे जहाँ पे सारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो अगर अटैच होने के लिए आएगा तो वो कहाँ पे अटैच होगा? सबसे पहली बात, उसको अटैच होना नहीं पसंद है, क्यों? हर एक कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्थो पैरा पे कम पॉजिटिव चार्ज है, बट मेटा पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, राइट? ऑर्थो पैरा पे क्यों कम पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि उधर बीच बीच में नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है, राइट? हाँ कि ना? अरे बोलो, इतना क्लियर है? तो ऑर्थो और पैरा पे बड़ी डिफिकल्टी से अटैच हो रहे हैं, इसके लिए उसको हेलोबेंजीन को क्या बोला? हेलोबेंजीन को डीएक्टिविटी ग्रुप बोला, पहली बात। और दूसरी बात कि बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोफाइल अटैचेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा एंड नॉट एट ऑल ऑन मेटा। क्लियर? हेलोबेंजीन क्लियर है एकदम? अभी बोलो, इधर तक क्लियर है हेलोबेंजीन? बोलो ना यार, कोई हाँ बोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा ना भाई। तो मैं क्लियर अप टिल नाउ? ओके चलो। अभी देखो भाई, अभी आता है मिथाइल ग्रुप। जरा इसको समझना भाई बरोबर। हैव यू हर्ड अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन? ये अच्छे से डीपली हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, बट अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? कभी भी याद रखो, डबल बॉन्ड के बाजू में सी एच बॉन्ड आया, देन इट हैपेंस देयर आर थ्री कंडीशन, बट एक कंडीशन अभी मैंने बता दी। क्या? वो सी भाई sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कम अगेन सदन बेटा, बोलो क्या कंडीशन? डबल बॉन्ड के बाजू में सी सी एच एच बॉन्ड, तीन तीन सी एच बॉन्ड है, कोई भी एक टूटेगा, ठीक है? जितने सी एच बॉन्ड ज्यादा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन की स्पीड बढ़ेगी भाई। तो इट्स वेरी सिंपल, आई एम शिफ्टिंग दिस इलेक्ट्रॉन लाइक दिस एंड टेकिंग दिस सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, एंड H प्लस को मैंने बाय बाय बोल दिया, H प्लस बाय। व्हाट आई डिड गाइस, क्या किया मैंने? आई गॉट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, नेगेटिव हो गया ये, एंड this electron start donating on this carbon, and ये bond
क्या हुआ, टूट के आगे जाएगा। कितना बैठ रहा है दिमाग में पहले? यस सर। ओके, अभी वापस रेजोनेंस करने आ रहा है आपको। नेगेटिव विल रिपेल दिस नेगेटिव, आगे भेजेगा। गाइस आगे, सर वी नो दैट, ऐसे करके हम लोग और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ इट विल डोनेट टू दिस एंड दिस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विल गो टू द आगे वाले कार्बन पे। ठीक है, और ये इसको डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाने के बाद CH2 माइनस जो H प्लस को वापस ले सकता है, जो निकाला हुआ था वो। सो गाइस वेरी सिंपल, हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा स्लो है देन रेजोनेंस, बिकॉज CH सिग्मा बॉन्ड टूटना इज स्लो थोड़ा सा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोनेटिंग, डोनेट किया इधर इलेक्ट्रॉन को हमने बेंजीन रिंग पे, तो प्लस H इफेक्ट बोलेंगे गाइस, प्लस H इफेक्ट बैठा दिमाग में। सो मिथाइल सर ग्रुप वापस से एक बार। हाँ वापस से एक बार, डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड, कम अगेन, डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ आ जाता है। अभी इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पे आए हैं उसने डोनेट किया बेंजीन रिंग को, डोनेटिंग इफेक्ट चालू हो गया। प्लस प्लस, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए प्लस H इफेक्ट बोला। और देखो ना रेजोनेंस में डोनेट कहाँ कहाँ किया उसने, ऑर्थो पे, फिर देखो सामने पैरा, फिर देखो बाजू में ऑर्थो, राइट। इतना बैठा अभी दिमाग में। तो क्या समझ में आया इससे कि बेंजीन रिंग में क्या बेंजीन रिंग में, बोलो ना, अगर अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, एक भी CH बॉन्ड होगा, तो वो इट विल स्टार्ट व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। एम आई क्लियर? सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वापस एक बार थोड़ा बताओ ना। हाँ सी, ध्यान से, मैंने क्या बोला देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब पहले दिमाग में फिट कीजिए, डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड। इतना बेटा दिमाग में, पहले डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड दिखा पहले आपको? ये हाँ सर। अभी जब भी ऐसे डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड आएगा ना, तो कार्बन, वो CH बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेगा। ये दूसरी बात फिट हुई? यस। दोनों रिपीट कीजिए पहले। पहले तो डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड, और सब C टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसकी जगह। बॉन्ड टूटने के बाद वो CH इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले लेगा, ठीक है। हाँ कार्बन ले। अभी देखो नीचे वाले स्ट्रक्चर में, देखो वो इलेक्ट्रॉन अपन ने किसको डोनेट किया, देखो रेजोनेंस चालू हो गया। क्या रेजोनेंस? डबल, ये देखो अभी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड के बाजू में लोन पेयर आ गया बेटा ये, यस सर। तो इट विल स्टार्ट रेजोनेंस। डोनेट यस। किया उसने, आगे गया लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज आ गया कहाँ गया, ऑर्थो पे, फिर आगे रेजोनेंस करके पैरा पे, फिर आगे रेजोनेंस करके ऑर्थो पे, वापस जैसा था वैसे हो गया, राइट। यस सर। सो इधर हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब CH बॉन्ड ब्रेक होना, और CH बॉन्ड ब्रेक होके देखो बेंजीन रिंग पे अटैच है, इसके लिए रेजोनेंस चालू हो गया। यस सर। अभी क्लियर है बेटा? सो कैन आई से दैट, बेंजीन, हाँ। कैन आई से दैट अभी बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप कुछ भी अटैच होगा, तो अल्काइल ग्रुप में CH बॉन्ड तो होते ही है, तो फटाफट टूटेंगे
और रेजोनेंस चालू हो जाएगा, डोनेटिंग इफेक्ट डोनेट किया ना देखो ऑर्थ और पैरा पे, तो इसके लिए क्या क्या नाम दिया इसको? प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट। ओके, सो प्लस एच इफेक्ट क्लियर है। अभी ऑर्थ और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है बट स्लोली स्लोली, मैंने बोला मतलब यस सर। अगर जनरली बात करें तो रेजोनेंस is considered to be a very fast, then and then ठीक है। तो रेजोनेंस क्या आगे किसको अपन को निग्लेक्ट करने का? हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव। ओनली सदन हेलोजन वाला केस ही एक्सेप्शन है जहां पे हेलोजन ने जबरदस्त क्या किया है, हेलोजन ने माइनस आई जबरदस्त इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट किया है। तो कैन वी कम ऑन दिस क्वेश्चन नाउ गाइस? इधर क्या करेगा मिथाइल ग्रुप भाई? ओए, मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? बोलो ना। हाइपर प्लस एच इफेक्ट। से क्या डेवलप करेगा? नेगेटिव चार्ज, बरोबर। यस सर। एंड हियर क्लोरीन, व्हाट क्लोरीन डज? क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, बोला माइनस आई माइनस इफेक्ट से है। करने का। तो माइनस आई इफेक्ट से हर एक कार्बन पे क्या भेजा? पॉजिटिव चार्ज भेजा, ठीक है। पैरा पे थोड़ा कम होगा बट होगा तो सही, थोड़ा भी इधर पॉजिटिव बढ़ा दिया तो थोड़ा तो अनस्टेबल कर दिया, बराबर की नहीं? सो स्टेबलाइज ये जो लास्ट के दो है वही हो रहे हैं। ऑब्वियसली रेजोनेंस इज कंसिडर्ड टू बी अ व्हाट मोस्ट पावरफुल रेजोनेंस के हिसाब से फोर्थ वन इज हाईली स्टेबल देन थर्ड वन, राइट? और फर्स्ट और सेकेंड में दिस इज गाइस माइनस आई इफेक्ट से हल्का फुल्का अनस्टेबलाइज्ड हुआ और इसने माइनस आर इफेक्ट से जबरदस्त डिस्टेबलाइज कर दिया था। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया आरजो? Yes, sir. ग्रेट। राधिका सदन क्लियर है बेटा? यस सर। यस यस सर। ग्रेट, चलो। सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ, सर जो अब हम रेजोनेंस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो प्लस आर और माइनस आर में किसको प्रेफरेंस देंगे सर? प्लस आर और माइनस आर दोनों दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। प्लस जी। आर मतलब डोनेट करना है, माइनस आर मतलब विड्रॉ करना है। ओके। इधर पीछे से आवाज बहुत आ रहा है। सो प्लस आर माइनस आर वो क्वेश्चन के ऊपर है ना। अगर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी करनी है तो हम लोग प्लस आर इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज करेंगे क्योंकि वो डोनेट करेगा नेगेटिविटी कार्बोकैटायन को। और एग्जैक्टली उल्टा आ जाएगा, कार्बो आनायन आ जाएगा तो हमें विड्रॉ करना है, नेगेटिव चार्ज विड्रॉ करने के लिए माइनस आर इफेक्ट चाहिए, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में क्या अटैच है उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे, राइट? ठीक है बेटा, ओके सर। ग्रेट। भी और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ गाइस, प्लीज ट्राई टू डू इट। ठीक है, बोलो कौन ज्यादा स्टेबलाइज है? स्टेबिलिटी ऑर्डर सर बोलो। फोर्थ वाला फिर उससे कम थर्ड वाला, उससे कम सेकंड वाला, उससे कम फर्स्ट वाला। फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है, वो बरोबर है। फिर आपने थर्ड बोले तो वो रॉन्ग हो गया।
क्यों सर? पूछो कैसे। देखिए ये इधर NO2, ठीक है, आपको पता है NO2 माइनस आर इफेक्ट करके ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डालता है। हाँ बेटा, यस सर, यस सर। तो माइनस आर इफेक्ट कर रहा है, प्लस एकदम बाजू में है तो माइनस आई इफेक्ट से भी उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। दो दो इफेक्ट सर से ये तो लास्ट अनस्टेबलाइज। में आएगा ना? हाँ ठीक है, ये जो है बाजू वाला बेटा, ये ऑर्थो और ये पैरा, तो मेटा बच गया, मेटा पे है ये देखो CH2+। तो इधर सिर्फ माइनस आई इफेक्ट से ही वो अनस्टेबलाइज कर रहा है ओनली। बात समझा ये बेटा? हाँ बोलो। यस सर, यस सर। और इधर माइनस आर इफेक्ट ही गिनेंगे, माइनस आई नहीं गिनेंगे क्योंकि वो बहुत दूर है NO2, ठीक है। तो माइनस आर देखते ही वो हाईली अनस्टेबलाइज कर देता है। तो इसके लिए -2 माइनस आई वाला जिसने थोड़ा ही डिस्टेबलाइज किया है। जी सर। समझा बेटा? तो ये Yes, इधर sir. गलती हुई, बस 2 आगे आएगा 3 पीछे आएगा। राधिका, आरजू, आरजू ने बोला है 4 1 2 3। मिस्टेक समझा बेटा आरजू? Yes, sir. Yes. राधिका, should I come again? No, sir, understood. ओके। देखो ऐसे एंट्रेंस के क्वेश्चंस है, आपको भी पता है स्टेबलाइजेशन जरा फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। गोइंग विथ वन मोर। बोलिए भाई। कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों? सर 4th वाला पहले आएगा नहीं, और आखिरी में 1 वाला है। 4th वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है। सर OH भी तो एक वो सोचिए। विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो वो प्लस चार्ज देगा ऑर्थो और पैरा पे। OH प्लस आर इफेक्ट करता है लोन पैर से, है ना भाई, लोन पैर OH के पास, तो वो डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर इफेक्ट करता है, हाँ कि ना? यस सर। तो वो ऑर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज। डोनेटिंग मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इधर व्हाट आई वांट टू टेल, इसने क्या किया, ऑर्थो और पैरा पे डोनेट किया नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज। तो इधर प्लस आर इफेक्ट है, इधर भी प्लस आर इफेक्ट है, बराबर है। ये दोनों स्टेबलाइज्ड है, हाँ बोलो। 1 और 3 स्टेबलाइज्ड है ज्यादा, बाकी दोनों से। सर हाँ, कितना क्लियर हुआ? सर हाँ बोलिए। सर OH है बोले वो विड्रॉइंग ग्रुप है ना? नहीं सुनिए, OH जो है ना वो ऑक्सीजन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट करता है, बड़ो माइल्ड लेवल पे है। और इधर तो एकदम ही दूर है, तो नो माइनस आई इफेक्ट। बट माइनस आई इफेक्ट से ज्यादा क्या करता है वो, उसके पास क्या है बेटा? प्लस आर।
लोन पेयर से वो करेगा रेजोनेंस। लोन पेयर से वो रेजोनेंस करेगा. यस. एम आई क्लियर? यस सर. सो अभी 3 इज मोर स्टेबल देन 1. क्यों? 1 में थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है माइनस आई इफेक्ट से, बट थर्ड में जरा भी नहीं हो रहा है. हाँ कि ना? बात बैठ रही दिमाग में? बोलो. जी 3 सर. और 1 समझा? हाँ. अभी इधर रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, बट थोड़ा थोड़ा माइनस आई इफेक्ट होते जाएगा. ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा तो खींचेगा ना, बट इसमें जरा भी नहीं खींचेगा. कोई है ही नहीं, मतलब इन शॉर्ट. इधर थोड़ा थोड़ा माइनस आई इफेक्ट करके पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, डिस्टेबलाइज किया. Hence, fourth is more stable than second. So, should I come again वापस? देखिए, नो सर, 1 और एक 3 और में क्वेश्चन सर. हाँ मैं कर रहा यस हूँ. सर. आरजू, क्या हुआ बेटा? 1 और 3 में क्या हुआ? 1 और 3 में इट इज प्लस आर इफेक्ट, तो हाईली स्टेबल है, वो तो समझा पहले. 1 और 3. Yes, sir. बट 1 में क्या हुआ? वो बाजू में OH है, तो थोड़ा थोड़ा माइनस आई इफेक्ट करके डिस्टेबलाइज किया उसको. तो हेंस 1 और 3 में 3 इज मोर स्टेबल देन 1. 3 में नो माइनस आई इफेक्ट बिकॉज बहुत दूर है. अभी 2 और 1 में, 2 और 4 में, 2 में नो प्लस आर. OH माइनस आई इफेक्ट करते रहेगा. OH माइनस आई इफेक्ट करते रहेगा. थोड़ा थोड़ा डिस्टेबलाइज किया उसको, बट जबकि 4 में कुछ भी नहीं था, हेंस इट इज मोर स्टेबल. हमें क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन. यस सर. भी ये जमना चाहिए आप लोग को. कार्बन है गाइस. बोलिए. सर फोर्थ वाला पहले आएगा. फोर्थ वाला पहले नहीं आएगा. सर सोचिए. और सेकेंड वाला ना. Second one, sir. सेकंड वाला भी नहीं. नहीं आएगा. सी नाउ आई अटेम्प्ट. फोर्थ में क्योंकि OCH3 पहले पे माइनस आई इफेक्ट दिखाने में, और वो लोन पेयर देकर रेजोनेंस चालू करेगा तो OCH3 पैरा पे, तो वो अपना डोनेट सुनो करेगा सुनो और ये सुनो. विड्रॉ करेगा, तो दोनों न्यूट्रल हो गए. देखो, तो वो मैंने पहले बोला ये कार्बो अनायन है, तो मुझे कार्बो अनायन होने के कारण मुझे इधर पॉजिटिव चार्ज लाना है, और NO2 जो है वो माइनस आर इफेक्ट करके फटाक से लाएगा पॉजिटिव चार्ज. ये थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव लाएगा उसके मुकाबले, बिकॉज ऑफ. बात समझ में आई? तो 1 और 2 ज्यादा स्टेबल है गाइस. 1 ज्यादा स्टेबल है 2 से. ओके. पॉजिटिव चार्ज लाना है, वो समझा पहले सदन. यस सर. अभी Yes, sir. इसने हाइपर कॉन्जुगेशन से नेगेटिव चार्ज लाया, अनस्टेबल किया उसको. नेगेटिव नेगेटिव और बढ़ा दिया. इसने बेटा जबरदस्त नेगेटिव चार्ज डाला, तो हाईली अनस्टेबल कर दिया. समझा बेटा एवरीवन? सदन? हाँ कि ना? यस सर.
समझा सर। हम्म, सर और चलो एक एक और। क्वेश्चन होना। हाँ हाँ लिख रहा हूँ चलो। बी मिनट बोलिए फर्स्ट वाला। क्या होगा इसमें? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा stable। परफेक्ट। फिर फिर थर्ड वाला। फिर हाँ, फिर थर्ड सेकंड वाला वाला, फिर ग्रेट सुपर। फिर सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला। फोर्थ क्यों वाला लेकिन हाँ। ऐसा? फर्स्ट में प्लस माइनस आर और माइनस आई भी होगा। हाँ इधर थर्ड में, थर्ड में माइनस आर होगा, माइनस आई नहीं होगा। इधर और इधर इधर भी इधर सिर्फ माइनस माइनस आई आई। होगा। हाँ इधर नो इफेक्ट राइट। यस सर। चलो अभी आपको दिमाग चल रहा है बरोबर। सो अभी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अरे क्या हो गया? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब कंपाउंड का क्या निकालेंगे हम लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे बेटा, ठीक है। अभी दो चीज आपको समझ में आ गई, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी, बरोबर? हाँ बोलो भाई। अभी यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ, हाँ वेरी गुड, एसिडिक स्ट्रेंथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी इधर OH ग्रुप है, बोलो। देखो भाई बुकलेट नंबर 2, ये सब क्वेश्चन उसमें से ही ले रहा हूं मैं, तो ये फिर प्रैक्टिस करना घर पे आज, आगे अगर जमता है तो करना आगे। तो हियर एसिडिक स्ट्रेंथ, सी ये क्या डेवलप करेगा? हाँ भाई, ओए, जल्दी। तो ये है ना, माइनस आर इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन को डिस्टेबलाइज कर देगा। डिस्टेबलाइज मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया ये। तो अभी ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। देखो जब तक नेगेटिव है तब तक ही होल्ड कर पाएगा ना पॉजिटिव को। नेगेटिव चार्ज मैंने क्या कर दिया? नेगेटिव चार्ज मैंने क्या कर दिया? रिमूव अगर कर दिया नेगेटिव चार्ज, तो भी इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, लीव करेगा। H+ बार निकला, हाईली एसिडिक। नहीं समझा? विथ प्लस आर इफेक्ट, सॉरी माइनस आर इफेक्ट, क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को बढ़ाता है, याद रखो। क्या बोला मैंने राधिका? प्लस इसने क्या आर किया? हाँ वेरी गुड। इधर इसने माइनस आई इफेक्ट से पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा डिस्टेबलाइज किया, थोड़ा थोड़ा एसिडिक किया, ठीक है। बट इसने तो
प्लस एच इफेक्ट से क्या किया भाई, इधर नेगेटिव चार्ज और भर दिया। 1 2 3 4 एक होगा मिनट, ना सर? हाँ इधर क्या हो गया, एक मिनट, वन टू थ्री फोर is your answer, but I am not able to write here. कुछ something is happening. हाँ गाइस, मेरा वो शीट ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, so I'll be stopping here. Answer is 1 2 3 4 और लास्ट Yes, के sir. दो जो था हाइपर कॉन्जुगेशन एंड क्या, लास्ट वाला प्लस आर इफेक्ट, जो क्या देगा, नेगेटिव चार्ज देगा ऑर्थो और पैरा पे, राइट? Yes, और sir. वो Yes. OH को नेगेटिव मिलेगा तो हाइड्रोजन को और टाइटली होल्ड कर देगा। सो बेसिकली कंक्लूजन, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विद द हेल्प ऑफ माइनस आर, फिर माइनस आई, एंड डिक्रीजेस इन द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक कम हो गई विद द हेल्प ऑफ प्लस आर से मैक्सिमम कम हो गई और माइनस आई से थोड़ा कम हो गई, राइट? बैठ रहे Yes, sir. दिमाग में? ओके, चलो here we stop guys. चलो बाय, टेक केयर. I'm sending this PPT right now. Thank you, sir. Yes. Okay. Bye, sir. Welcome, Thank beta. you, Bye. sir. My pleasure. Take care.